Namaskar friends, and welcome to this briefing on the COVID situation. To brief us on the latest, we have Dr. V.K. Paul ji from NITI Aayog, Health Secretary Shri Rajesh Bhushan ji, and DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji. First there will be a presentation and opening remarks by the Health Secretary, followed by remarks by Dr. V.K. Paul. Over to Rajesh Bhushan ji. So we will start by giving you a snapshot of the COVID situation in the country. We have 92% people who have recovered. We also have 1.30% unfortunate deaths, and we have roughly 6% new cases or active cases. So these are cases which are in hospital or in home isolation under medical care. If we look at the top 10 districts which are contributing the maximum number of active cases, you will find that still there are 7 districts from Maharashtra, 1 from Karnataka, 1 from Chhattisgarh, 1 from Delhi. So Chhattisgarh is a new entrant in this list. The 7 districts of Maharashtra are Pune, Mumbai, Thane, Nagpur, Nasik, Aurangabad and Ahmednagar. 1 Karnataka district is Bengaluru urban, 1 Chhattisgarh district is Durg, and we have Delhi. However, even now, if we look globally in terms of either cases per million population or death per million population, India still remains the lowest or among the lowest. If you see here, you have countries like USA, which has more than 90,000 cases per million, France more than 70,000 cases per million, UK more than 64,000 cases per million, but India is with 9,000 odd cases per million. So among the larger population countries, we still remain amongst the lowest in terms of cases per million of population. If we look at deaths per million population, you will see that UK has more than 1800 deaths per million, USA has more than 1600, Mexico 1500, Brazil more than 1500, France more than 1400. India has 120 deaths per million, so in deaths also we remain amongst the lowest in the world. Within the country, if we look at the trajectory of cases, you will find that cases had grown in mid-September, then they had continuously declined till the first week of February, and they have now started climbing up from first week of February till date. It's a continuous climb. Yesterday, in the last 24 hours, the country reported more than 96,000 cases. Day before yesterday, the country had reported more than 1 lakh cases. So this is the trend. If we look at daily deaths, you will see that again it was in mid-September that the country was reporting more than 1,089 deaths on an average every day, and then they continuously declined and touched a level of less than 100, 95 deaths a day. They have again started climbing, and presently in the last 24 hours the country reported 446 deaths. How are these distributed across states? That we will tell you now. The states of maximum concern to us still remain Maharashtra, Punjab and Chhattisgarh. Maharashtra, because of its share in the total number of cases as well as total number of deaths nationally, and Punjab and Chhattisgarh, we will come to them because of their share in the number of deaths. Given their population, the death numbers that are being reported by Punjab and Chhattisgarh are a cause for extreme concern. What are we doing about it? That also we will brief you in course of this presentation. महाराष्ट्र को यदि हम देखें तो वहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 3000 केसेस प्रतिदिन आते थे,
और अब जो वीकली औसत है महाराष्ट्र में वो 44,000 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है। 58% of all active cases of the country are in Maharashtra as we talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी। ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना, ये चिंता को बढ़ाता है। अगर हम देखें कि एवरेज डेली टेस्ट जो किए जाते हैं किसी भी राज्य में, पिछली बार हमने व्यापक रूप से इसकी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि हमारा परामर्श राज्य सरकारों को है कि RT-PCR टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में ये अनुपात पिछले कुछ सप्ताहों में घट रहा है। आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में 71% था, उससे पहले 72% था, उसके बाद वो लगातार घटता रहा, 69% हुआ, फिर 64% हुआ। पिछले सप्ताह में राज्य में जो कुल टेस्ट किए गए उनके केवल 60% टेस्ट RT-PCR थे। हमारा परामर्श राज्यों को रहता है कि इसको 70% या उससे अधिक तक ले जाया जाए, क्योंकि ये बेहतर कैप्चर करता है राज्य की पॉजिटिविटी को। हाल में हमने महाराष्ट्र को ये परामर्श दिया है कि जो कठिन इलाके हैं, जो जियोग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ वो मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्य में ICMR महाराष्ट्र शासन की मदद कर रहा है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट्स को देखें तो ये घटकर 6% के लगभग हो गए थे फरवरी के प्रारंभ में महाराष्ट्र में, लेकिन अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। 20% हुए, फिर 23% हुए और पिछले सप्ताह में 24% हुए। तो ये भी चिंता का विषय। ये दिखाता है कि ऐसे लोग जो कि इन्फेक्टेड हैं, जिनको हमें आइसोलेट करना चाहिए या तो घरों में या अस्पतालों में, संभवतः वहाँ हमें और अधिक कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि छोटा राज्य है, आबादी भी कम है, उसके बावजूद देश के कुल कोविड केसेस का 6% और देश की कुल मृत्यु का 3% छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट किया जा रहा है। जब पहला चरण इस इन्फेक्शन का हमने देश में देखा था, उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं थी। ये फरवरी से जो हम दूसरा इन्फेक्शन देख रहे हैं पूरे देश में, उसमें छत्तीसगढ़ में न केवल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि मृत्यु भी ज़्यादा हो रही हैं। औसत मृत्यु अगर देखें तो यहाँ प्रतिदिन 38 मृत्यु पिछले सप्ताह में दर्ज की गई और औसत केस देखें तो 4,900 से कुछ अधिक दर्ज किए गए। हमारी मंशा कोई कंपैरिजन करने की भी नहीं है, न तो किसी राज्य की ओर उंगली उठाने की है, क्योंकि ये एक जॉइंट कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है जिसमें भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। लेकिन चिंता तब होती है जब बड़ी आबादी के राज्य जो इनके अगल बगल में हैं, वहाँ न केवल औसत केसेस कम हैं बल्कि औसत मृत्यु भी कम है। RT-PCR का जो अनुपात है कुल टेस्ट में वो केवल 30% है और ये घटा है। ये 34% और 36% भी हुआ करता था इस राज्य में, लेकिन ये घटकर 30% हो गया है। हमने ये टेस्ट बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहे हैं और 16.71% हैं। अगर पंजाब को देखें तो देश भर के 3% केस पंजाब से आते हैं अभी आज की स्थिति में, और देश में जो मृत्यु कोविड से हो रही हैं उसकी लगभग 4.5%
पंजाब में हो रही हैं। और जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा, वैसे ही अगर पंजाब के अगल बगल के राज्यों से तुलना की जाए, दिल्ली से की जाए या हरियाणा से की जाए, तो न केवल एक्टिव केसेस के मामले में बल्कि मृत्यु के मामले में भी दिल्ली और हरियाणा के नंबर्स बहुत कम हैं पंजाब के तुलना में। तो एवरेज केसेस पंजाब में 2790 से अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं। एवरेज डेली डेथ्स अब 58 हो गई हैं बढ़कर। एवरेज डेली आरटीपीसीआर का शेयर 76% है, ये संतोष की बात है। यहाँ 70% से अधिक हमेशा आरटीपीसीआर टेस्ट रहे हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगभग 8.5% पर आकर ऐसा लगता है ठहर गई है। तो इसलिए टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वीकली पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सके। अगर कर्नाटक को देखें तो यहाँ भी एवरेज डेली केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 399 केस हुआ करते थे, ये बढ़कर अब 4376 हो गए हैं, यानी लगभग 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं। अगर हम एवरेज डेली डेथ्स देखें तो ये 4 के लगभग थी फरवरी के प्रारंभ में, अब 20 हो गई हैं। आरटीपीसीआर का शेयर 90% से अधिक है, ये बहुत संतोष की बात है और लगातार इन्होंने इसको 90% से अधिक बना के रखा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट WHO के मापदंड के हिसाब से अभी 5% से नीचे हैं, लेकिन क्योंकि बेस आबादी का बहुत बड़ा है तो 3.86% पॉजिटिविटी पे भी जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं इन्फेक्टेड केसेस के वो बढ़ जाते हैं, इसलिए चिंता की बात है। गुजरात को अगर हम देखें तो ये 260 केस यहाँ औसतन प्रतिदिन आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब 2640 हो गए हैं। एवरेज डेली डेथ्स 1 पर आ गई थी, ये 12 हो गई हैं। एवरेज डेली आरटीपीसीआर का शेयर काफ़ी घटा है, ये 50% हुआ करता था और अब घटकर 27% हो गया है। हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता है। वीकली पॉजिटिविटी रेट घटा है, ये मार्च के मध्य में लगभग 5.5% हो गया था, अभी घटकर 3.31% हुआ है। मध्य प्रदेश को देखें तो ये यहाँ भी केसेस बढ़े हैं, 2750 के लगभग प्रतिदिन केस आ रहे हैं। एवरेज डेली डेथ्स 13 हैं, ये 2 हो गई थी फरवरी के प्रारंभ में। आरटीपीसीआर का अनुपात 73% है, ये संतोष की बात है। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, 10% हो चुका है, तो ये चिंता को बढ़ाता है। तमिलनाडु में 3104 केस औसतन अब आ रहे हैं और 15 मृत्यु के मामले औसतन आते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ हमेशा 90% से अधिक रहे हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु बहुत कम ऐसे राज्यों में देश के है जहाँ की 95 से लेकर 98% तक कुल टेस्ट का आरटीपीसीआर टेस्ट ही होते हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट इनका 4.17% है। दिल्ली की ओर अगर नज़र डालें तो दिल्ली में केसेस की संख्या लगातार घट रही थी, 132 प्रतिदिन औसतन केसेस आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब वो बढ़कर औसतन 2907 हो गए हैं। हालांकि अनेक दिन ऐसे रहे हैं जबकि इससे भी ज़्यादा केसेस आए हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ एवरेजेस देयरफॉर we are showing you this figure of 2907. Average daily deaths have increased from 2 which was in the beginning of February to 12 now, and average daily RT-PCR share is hovering around 60 to 65. There is a possibility of ramping it higher. Weekly positivity rate, which had gone below 0.5%, has now steadily climbed up to 3.5%. If we look at Haryana, the cases have gone up to 1600 per day. Daily deaths are still below 10, but they have climbed up from 0 to 8, and average share of RT-PCR test again has been throughout more than 90%, which is a cause for satisfaction. Weekly positivity rate has increased and is now more than 7%.
Kerala was showing a consistent declining trend, as you see, from 4,977 cases on a daily basis. It had steadily come down to 1,800 cases, but in the last 2 weeks, it has shown a slight increase, 2,000 cases and 2,500 cases. The deaths have more or less plateaued at 12 or 13 on an average every week. RT-PCR share is a cause for concern. It has never crossed more than 53%. In fact, of late it has declined. So we have advised the state appropriately. Weekly positivity rate is climbing up now. It has come down to less than 2%, but it is now 5%. The last state or UT of concern is Chandigarh. Small area-wise, small in terms of population. But if we see average daily cases, they have gone up from less than 20 to 287 per day. And average daily deaths have remained between 1 to 3. However, the positivity rate is climbing up and it has gone to 14%. And the share of RT-PCR test is 81%, which is good. So what have we done? We have deployed central teams in Maharashtra, Chhattisgarh and Punjab. There are 50 such high-level multidisciplinary public health teams. Each team consists of two people. One is a public health expert doctor and the other is a clinician doctor. So both are doctors. One is a public health person, other is a clinician. What would they be doing? They will be going to 30 districts of Maharashtra, 11 districts of Chhattisgarh and 9 districts of Punjab. When would they reach these districts? Either today or latest by tomorrow. What would they do once they reach these districts? They would assist the state health department and the local district authorities in surveillance, control and containment measures. So when we say surveillance, control and containment measures, there are 5 thematic areas of this broad generic work, and these areas are: they will see how can we streamline testing, how can we make contact tracing including surveillance and containment more efficient, how can hospital infrastructure be strengthened including ICU beds, ventilator beds and oxygen beds, enforcement of COVID appropriate behavior. People should wear masks at all places, public places, properly. That means their nose and mouth must be covered, and they must avoid crowding and maintain physical distance, and COVID vaccination. So these are the 5 points that they would be assisting the state government and the district administration. They would also be submitting daily reports to the state government and to the Union Ministry of Health and Family Welfare. These teams will remain in these districts for 3 days to 5 days. So this is a major intervention that we have done. Now let us talk about vaccination. Yesterday we administered 43 lakh doses in 24 hours, which is a record for the country. As a result, in the morning today we have administered 8 crore 31 lakh doses, and if we look at people above 45 years, then it is 5 crore 35 lakh first doses. Similarly, if we look at healthcare workers, more than 89 lakh first doses, and frontline workers more than 97 lakh doses. Let's see how does it compare globally. So this is the daily rate of doses administered. This is not from our website, it's from Bloomberg. US has an average of 30 lakh 53,000 doses that are administered daily. India has an average of 26 lakh 53,000. तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम ग्लोबली देखें तो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में औसतन प्रतिदिन 30,53,000 डोजेज एडमिनिस्टर की जाती हैं। हमारे देश में 26,53,000 डोजेज औसतन प्रतिदिन। ब्राज़ील, यूके, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, इटली, ये ऐसे देश हैं जो 2 लाख से लेकर 6 लाख डोजेज प्रतिदिन एडमिनिस्टर कर पाते हैं। तो ये हम आपको बताना चाहते थे कि ग्लोबल कंपैरिजन में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखें कि रैंप अप किस देश ने किस गति से किया, तो जो फास्टेस्ट रैंप अप हुआ है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, वो हमारे देश में हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने आज तक, ये 4 तारीख के डाटा हैं और ये एक वेबसाइट है आवर वर्ल्ड इन डाटा, आप में से भी कई मित्र उसको देखते होंगे प्रतिदिन। उसके डाटा हैं, उसके हिसाब से अमेरिका में 16 करोड़ 165 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं 112 दिन में। उन्होंने हमसे 1 महीने से पहले ये कार्यक्रम अपने देश में शुरू किया था। हमारे देश में 4 अप्रैल तक 7 करोड़ 90 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई थी और अभी 8 करोड़ 31 लाख हो गई हैं, जो मैंने आपको बताया। इसको हमने करने में 79 डेज लिए। यूनाइटेड किंगडम ने 118 दिन में 3 करोड़ डोजेज अपने देश में एडमिनिस्टर की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 6 करोड़ 60 लाख है। ब्राजील ने 78 दिनों में 2 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की। जर्मनी ने 99 दिनों में 1 करोड़ 40 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की। फ्रांस ने 99 दिनों में 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की। और इटली ने 99 दिनों में 1 करोड़ 10 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि समय समय पर कुछ मित्र ये कहते हैं कि हम तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन है और ये एडल्ट वैक्सीनेशन है। आप कोई वस्तु किसी को बांट रहे हो और वो उसको लेकर थैले में या जेब में डालकर घर जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें अप्रत्याशित रैंपिंग अप नहीं हो सकती है, एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत होता है। और उस साइंटिफिक प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि जब आपको इनोकुलेट किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप आधे घंटे बैठेंगे, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हुआ, अगर होता है तो हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जो साइंटिफिक रिगर है, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, उसका पालन करते हुए आप कितनी तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ाते हैं, ये देखने की बात है। और ये हम आपके समक्ष निवेदन करना चाहते हैं कि 80 से कम दिनों में लगभग 8 करोड़ डोजेज हमने अपने देश में एडमिनिस्टर की और ये राज्य सरकारों और भारत सरकार के बहुत नजदीकी सहयोग से संभव हो पाया और ये अपने आप में एक मिसाल है। एक और नैरेटिव चलता है, अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते, क्यों नहीं हर बालिग आदमी को टीका लगा दिया जाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व में क्या हो रहा है। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप मृत्यु से बचें। हमने आपको दिखाया कि अन्य पाश्चात्य देशों में, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, द नंबर ऑफ डेथ is significantly higher than India. So the basic aim is to reduce death through vaccination. What is the other aim? The other aim is to protect your health care system. अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा, वो चलेंगे कैसे? तो यही 2 उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी यह नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा यह होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व ने क्या किया।
अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने फरवरी के अंत से लेकर 15 अप्रैल तक ये कहा कि हम केवल 60 से 69 साल के व्यक्तियों को ही टीका लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद हम 50 से 59 साल के व्यक्तियों को टीका लगाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम 16 से 64 बरस के उन लोगों को टीका लगाएंगे जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक नहीं है, यानी कोमॉर्बिड है, या ऐसे एल्डरली और डिसेबल्ड को लगाएंगे जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो अमेरिका ने आज भी वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दिया हो, ये तथ्य नहीं है। ये यूके की बात थी, सॉरी, ये यूनाइटेड किंगडम ने किया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा कि जो फ्रंट लाइन एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो हमारे देश ने कहा कि हम उनको टीका लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो 75 बरस और उससे ज्यादा आयु के लोग हैं, हम उनको टीका लगाएंगे। फिर हम अगले फेज में जाएंगे, फेज 1C, उसमें हम 65 बरस से 74 बरस के लोगों को टीका लगाएंगे। ये अमेरिका ने कहा, ये अभी चल रहा है वहां उनके देश में। फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस ने कहा कि 50 साल से ऊपर के उन्हीं लोगों को लगाएंगे जो एट रिस्क हैं, यानी उनका जो श्रेणी थी, उनका कैटेगराइजेशन था, that was a far more restrictive, that still remains a far more restrictive categorization than us. उन्होंने ये भी कहा कि जो 60 साल से ऊपर के हैं उन्हें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लगाएंगे, और ऐसे अध्यापकों को लगाएंगे जो कहें कि मुझे लगा दो। स्वीडन ने यह कहा कि 65 साल और उससे ऊपर के ही लोगों को लगाएंगे। आज भी स्वीडन में 65 साल से नीचे के लोगों को टीका नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 70 साल और उससे ऊपर के लोगों को लगाएंगे, और ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाएंगे जिनको हम पहले नहीं लगा पाए। एबोरिजिनल लोग, जो उनके पुराने बाशिंदे हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको लगाएंगे। टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, वो जो जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार है या अन्य द्वीप समूह हैं, उनके यहाँ भी ऐसे द्वीप समूह हैं, वहाँ भी कुछ आदिवासी जन रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को लगाएंगे, और वो भी वैसे ही आदिवासी लोगों को जो 55 बरस से ऊपर के हों। फिर कहा एडल्ट्स विद सीवियर डिसेबिलिटी को लगाएंगे, या उनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो उन्हें लगाएंगे। क्रिटिकल और हाई रिस्क वर्कर्स को लगाएंगे, जैसे डिफेंस, पुलिस, फायर, वो हमने भी कहा है और हमने अपने देश में लगाया भी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो ये मैंने आपको बड़े देशों के उदाहरण दिए। ये वो बड़े देश हैं जिन्होंने की व्यापक विचार विमर्श किया, विज्ञान को देखा और WHO की गाइडलाइंस को देखा। मैंने WHO की गाइडलाइंस का जिक्र नहीं किया, डॉक्टर पॉल उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। किसी देश ने बिना योजनाबद्ध तरीके के, बिना विज्ञान के एविडेंस के जोश में ये नहीं कहा कि हम 18 साल से ऊपर के सब लोगों को लगा देंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हम आपको बताना चाहते थे। अब देश में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें कुछ राज्य हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात भी हम आपके सामने लाना चाहते थे। तो अच्छा काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है। वहां 81 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, 8 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी एडमिनिस्टर की जा चुकी है। अच्छा काम गुजरात में हो रहा है, वहां 76 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी हैं, 8,71,000 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राजस्थान में 72,99,000 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 71,98,000, ऑलमोस्ट 72 लाख लोगों को पहली डोज। वेस्ट बंगाल में 65 लाख लोगों को पहली डोज, कर्नाटक में 48 लाख लोगों को, मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों को, और केरला में 40 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज के आंकड़े भी हमने आपको दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले हैं
तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट इमर्ज हुई हैं। पहली है कि पेंडेमिक का प्रभाव देश में बढ़ा है। इसी माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से जब केसेस के नंबर कम हो रहे थे, पेंडेमिक में डिक्लाइन हो रहा था, बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि हमें इस सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम सोसाइटी से, समाज से साझा कर रहे थे कि इसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो ससेप्टेबल है, अभी वायरस यहीं पे है, हमें बच के रहना है। और इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, तंत्र के लेवल पे हमें पूरे वो काम करते रहने चाहिए हैं और चाहिए थे, जिससे कि ये वायरस कंट्रोल में रहे। वायरस ने अपना प्रभाव दिखाया और जैसे आज आपको सूचित किया गया सिस्टमैटिकली, डिटेल में, स्थिति में पेंडेमिक में खराबी आई है। सीरियस राइज हुई है हमारे केसेस में, एक वेव की तरह राइज हुई है। और ये भी आपने नोटिस किया है, आपने लिखा भी है पब्लिक डोमेन में कि इस बारी की ये जो स्पीड है वो पिछली बारी की स्पीड से ज्यादा है। ये हमें मालूम होना चाहिए, तेज गति से हो रहा है। कुछ राज्यों में ये समस्या ज्यादा है, कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी राज्यों पर भी हम नजर डालें तो सब में अपस्विंग हमें दिखाई देती है। इसका है तात्पर्य यह है कि सारे देश को ही अब मेहनत करनी है, जुड़ना है और पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। उनके बिंदुओं को हमें सेक्रेटरी साहब ने फिर दोबारा जताया, दिखाया। वही टूल्स हैं हमारे, लेकिन उन टूल्स को हमने परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना है। चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे कंटेनमेंट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, या अस्पतालों की तैयारी की बात हो, या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात हो। जिस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए, जहां भी पेंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा, जान बचेगी। तो ये टूल्स हमारे पास रहे हैं, वैक्सीन भी उन टूल्स में जुड़ा है और इनको पूरी मेहनत से हमें सारे देश में और खासकर उन जिलों में, उन प्रदेशों में जहां समस्या और ज्यादा गंभीर है, हमें करना होगा। हम चाहेंगे कि मीडिया और समाज इसमें अपनी भूमिका निभाए, साथ जुड़े, एक मत से इसको मिशन की तरह लेके जो मैसेजिंग है उसके अराउंड अलाइन हो, समाज को तैयार करे, देशवासियों को तैयार करे। और उसके जो इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात है, मास्क पहनने की जो बात है, जो मास्क वाला वैक्सीन है उसको अपनाने की बात है, भीड़ ना करने की बात है, या जहां पे अब रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं उसको अपनाने की बात है, उसको जिम्मेवारी से अपनाने की बात है। वो भूमिका हम सबको पूरी करनी है। मैं चाहूंगा कि इसको आप कैंपेन की तरह लीजिए। ये असाधारण स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे जो मीटिंग लिया, उनके जो निर्देश हुए हैं उसके मुताबिक कार्रवाइयां हो रही हैं। 50 टीम्स गई हैं। जन भागीदारी, जन आंदोलन की तरफ उन्होंने अपनी गाइडेंस दी है, मार्गदर्शन दिया है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर हमें सबको इसमें पूरी ताकत से, पूरी ओनरशिप के साथ जुड़ना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कि केसेस भी बढ़े हैं और मोर्टेलिटी भी चल पड़ी है उसी लाइन पे। डेथ्स होती हैं 7वें, 8वें, 10वें दिन, थोड़ा पीछे चलता है उसका राइज। केस ऐसे बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा डिले होगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और किसी ये नहीं रही है कि इसमें मोर्टेलिटी कम है, बचना है इसको। केस होंगे, नुकसान होगा इंडिविजुअल को, फैमिली को, इकोनॉमी को, समाज को। लेकिन जैसा भी दर्शाया गया, अभी भी हम
पॉपुलेशन के हिसाब से पेंडेमिक को देखें तो हमारे वश में है, डेथ के हिसाब से देखें, पर मिलियन के हिसाब से देखें, हम अच्छा कर रहे हैं अभी भी। तो उसी रिकॉर्ड को, उसी रिपोर्ट कार्ड को हमने बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट कार्ड लंबा हो जाए, हमारे बार हमारे नाम की जो है वो दिखनी शुरू हो जाए। ये देश ने जो अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे वश में है। ये तो पहला पॉइंट है हम सब की तरफ से। दूसरा पॉइंट वैक्सीन के बारे में है, और थोड़ा पैनिक लगता है कई बार कि वैक्सीन, जब केसेस देखते हैं तो वैक्सीन के बारे में चर्चा होती है, एक नैरेटिव बनता है, और खासकर एक जो नैरेटिव है कि सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, सबको उपलब्ध करना चाहिए, उसकी चर्चा सेक्रेटरी साहब ने कही है, उस पर मैं 1 मिनट में आता हूं। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि आप सब इस चीज को सेलिब्रेट करें कि हमने 4.3 मिलियन डोसेस एडमिनिस्टर किए 24 घंटे में, 43 लाख। ये आंकड़ा हमने आपसे भी कभी नहीं सुना कि इसको करके दिखाइए, करके दिखाया गया। और अभी और भी गति बढ़ेगी, ये भी हमने आपको एश्योर किया था कि जैसे जैसे समूह बढ़ेगा, व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी। और पिछली बार आपको दर्शाया गया कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है बेनिफिशियरीज का वो 97%, उसको साथ रखते हुए इस लेवल की परफॉर्मेंस देश ने जो की है, इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें गर्व होना चाहिए, इसको अंडरमाइन मत करिए। बाकी नैरेटिव्स ठीक है और वो होंगे, लेकिन जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, और सर ने यह भी बताया कि डेली स्पीड का जो रिकॉर्ड है, अभी हमारा 26 लाख वाली स्पीड एवरेज की बात करी है। एक देश है जिसके पास और थोड़े जरिया है, हमसे पहले शुरू हुआ है, उसमें मोमेंटम और तरह का है, उसको भी पार करेंगे। ये सिर्फ टाइम की बात है, ये बता सकते हैं हम आपको। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इस प्लैनेट पे एवर, और ये सिद्ध किया जाएगा। इतनी गति और इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत और इतनी सोच और जन भागीदारी है कि ये आपके सामने आएगा। इस एक बिंदु पे जो सेक्रेटरी साहब ने अच्छी तरह से इलैबोरेट करके हमें समझाया कि खोलना जो है हर व्यक्ति को देना है, इस नैरेटिव को एक साइंटिफिक तरीके से प्लीज आप देखिए। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कि वैक्सीन इतनी तेज गति से डेवलप हुआ, हमारे देश में वैक्सीन प्रोडक्शन इतनी मात्रा में, हम बहुत लकी हैं, इस सप्लाई में इस तरह से चल पड़ा है। लेकिन इसको, उस नैरेटिव को हमें ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, और डॉक्टर भार्गव यहां बैठे हुए, कि अभी तक किसी ने, वैक्सीन की रिसर्च ने ये नहीं दर्शाया कि इतने स्केल पे जब वैक्सीन देते हैं तो क्या हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, और वो होता है कि नहीं होता, ये भी अभी इंतजार करिए। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के डायनेमिक सिर्फ लगने से नहीं होते, अंदर क्या बनता है वो है, वायरस की फितरत पे है। हमने यहां से ये भी शेयर किया था कि 80% को इन्फेक्शन हो जाती है, फिर भी चलता रहता है। तो मैं मुद्दा ये कहना चाहता हूं कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतने जोरों से दो तो पेंडेमिक रुकती है? द आंसर इज वेट, नॉट येट सॉर्टेड आउट। जो पता है वो ये पता है कि सारे ही वैक्सीन जो आज दिए जा रहे हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग अवर 2 ग्रेट वैक्सीन, मोर्टेलिटी को कम करते हैं, सीवियर डिजीज को कम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी प्रायोरिटी को आगे करके प्रायोरिटाइजेशन करी गई है उस सिचुएशन में, जबकि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रही है, वैक्सीन के साथ जुड़ना है, अडल्ट्स को वैक्सीन पहुंचाना है। तो जो सोच आज आपके सामने आई है, प्लीज उसको तरफ नजर डालिए। ये इसको ट्रिवियलाइज करना, कोई भी समूह इसको करता है, कोई भी ग्रुप कहते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसा दिखाया गया, बताया गया आपको, WHO की गाइडेंस, टॉप प्रायोरिटी हमारी है कि रिड्यूस डेथ्स एंड डिजीज बर्डन, उसको बचाइए। ये अमेरिका की गाइडलाइन है जो अभी टेबल पे भी दिखाई गई थी, और ये कहता है
1C जो है, 1AB के बाद भी जो C है वो 65 to 74 ईयर्स की है, कोमॉर्बिड कंडीशंस की है और हेल्थ वर्कर्स की है। अभी ये उनका काम पूरा नहीं हुआ है, ये अमेरिका का। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 22 मार्च से जो उन्होंने काम शुरू किया है वो 70 to 79 ईयर्स के ऊपर शुरू हुआ है, कोमॉर्बिड कंडीशंस पे शुरू हुआ है और उसके बाद वो अभी 50 तक जाएंगे। यूके की बात करें, उन्होंने 9 ग्रुप्स लिए, 75 साल के ऊपर से शुरू किया धीरे धीरे, और वो लिखते हैं कि वी हैव सेड दैट बाय द मिडल ऑफ अप्रैल वी एम टू हैव ऑफर्ड अ फर्स्ट डोज टू प्रायोरिटी 5 to 9, ऊपर की प्रायोरिटीज उनकी हो गई 4, विच इज एजेड 50 to 69, 50 एंड कोमॉर्बिडिटी उसके नीचे। आपको स्वीडन का बताया गया, हम सबके दोस्त रहते हैं, WHO में काम करते हैं। हमने उनसे पूछा कि स्विट्जरलैंड जो सबसे अमीर देशों में है वहां क्या सिचुएशन है, तो अभी वो 65 से ऊपर वालों को पूरा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई, स्वीडन की बात हो गई, फ्रांस में भी आपको दिखा दिया गया कि अभी 60-65 वालों को हो रहा है। इसके पीछे यही सोच है कि सबसे पहले जो मोर्टेलिटी के प्रिडिलेक्शन को लेके हैं हमारे समाज में उनको कवर करो, वो काम को जल्द से जल्द पूरा करो, डेथ्स को बचाओ, क्योंकि जब महामारी की को हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो डेथ कितनी हुई है यही हम सबसे पहले पूछा जाएगा। इसके पीछे सोच है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ग्लोबली वैक्सीन इज फाइनाइट, इसलिए इसके पीछे प्लीज आप अपना सोच लगाइए और इसके साथ जुड़िए, क्योंकि जब हम ये बात डिस्ट्रैक्ट करते इसकी तरफ चल पड़ते हैं तो हमारा जो फोकस है पैंडेमिक को कंट्रोल करने का वो हट जाता है, एक तरफ चल पड़े। पहले तो यह है कि इस काम को पूरा करिए। ये पूछिए कि हमारे जिले में हमने जो चिन्हित हुए हैं 45 साल के, हम तो 45 साल तक पहुंचे, आपने किसी का नहीं सुना 45 की बात हो। इतने एग्जाम्पल अभी आपने दे दिए, 50 के नीचे अभी कोई एग्जाम्पल ही नहीं आया, सेक्रेटरी साहब ने भी और मैंने भी नहीं दिया आपको। क्या वो आ रहे हैं? क्या हमारे सेंटर्स में जो पूरी कैपेसिटी है उसको लेके यूज कर रहे हैं कि नहीं? इसके ऊपर आइए। इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के ऊपर आइए। क्यों हर एक व्यक्ति के ऊपर मास्क नहीं है? ये वैक्सीन क्यों हम नहीं अपना पा रहे? उसके ऊपर आइए। आप हमें अकाउंटेबल बनाइए कि हमारे जिले में कंटेनमेंट जोन अच्छी तरह से पूरी तरह से इफेक्टिव है कि नहीं, हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी कि नहीं करी, हमने रिपोर्ट टाइम दे कि नहीं दी, टेस्टिंग हमने बढ़ाई जहां बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। इन चीजों के ऊपर हम जवाबदेह हैं। वैक्सीन की प्रक्रिया इतनी गति से चल रही है, उसको प्लीज सेलिब्रेट करिए। देश की जो अचीवमेंट है, अनयूजुअल अचीवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, उसके तरफ हमारा ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको उसी परिप्रेक्ष्य में कह के अपनी अचीवमेंट को लें और उसके साथ आगे बढ़े। और जब वक्त आएगा कि यह और खुलना चाहिए, जब हम अच्छी पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कवरेज अच्छा देंगे, तो वो भी हो जाएगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि हम आदर करते हैं जो ऐसे सजेशंस आते हैं, उनका हम आदर करते हैं। शायद ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार फिर विनती है सबसे कि पहले वैक्सीनेशन की जो करंट स्ट्रेटेजी है उसको अपनाओ, उसकी हेजिटेंसी को दूर करो। चाहे वो डॉक्टर थे पहले या नर्सेस थे, हमारे भाई बहन थे, आज जो भी समूह जुड़ा है उनको तेजी से, तेज गति से हमारे सिस्टम के साथ जोड़ने में मदद करिए। हेजिटेंसी को हटाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, जहां जहां रिस्ट्रिक्शंस आई हैं उनका आदर करते हुए। जो क्राउड में जाने वाले पर्सनल लेवल पे मौके हैं उनको कम करिए, मत करो, इंतजार करो। और ये हमें सेकंड वेव को भुगतना भी है, इसको फेस भी करना है, उसको हराना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस पेंडेमिक की सेकंड वेव को कंट्रोल करेंगे और हम एक पॉजिटिव लहर जन भागीदारी की बहुत जरूरी है।
अगले 4 हफ्ते बहुत बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। धन्यवाद। Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. So I have two questions. Firstly, what is the current stockpile and how much is the government likely to procure in terms of vaccines from both Bharat Biotech and Serum Institute? Secondly, shouldn't states be given some flexibility on whom they decide to vaccinate first, depending upon each and every state, because the situation is very different state-wise. As you rightly emphasize that top 10 states and districts are behaving in a different manner as compared to the entire country. I entirely agree with you. Suppose you were district magistrate in a district which was reporting exceptionally high number of cases from 2 blocks and relatively low number of cases in remaining 8 blocks, assuming that your district had 10 blocks. So where would you concentrate your vaccination effort? In those 2 blocks which are showing higher numbers. That is the flexibility that we have already given to the states. In fact, the union government has proactively advised the states formally, communicating to them that these are the geographies within the state which are reporting higher numbers and higher deaths. Therefore, rather than spreading your vaccine doses thin across the state, you would want to concentrate in these districts. So there I entirely agree with you. So what about the procurement of vaccine and the... That we will share with you. सर मेरा नाम रवि सिंह है, न्यूज़ 18 इंडिया से। मेरा सवाल है कि क्या निजी कंपनियों को भी छूट दी जाएगी कि वो अपने एम्प्लॉयज को वैक्सीन लगा सके? आज भी निजी कंपनियों के एम्प्लॉइज वैक्सीन लगवा रहे हैं। देश भर में लगभग 44,000 के बराबर की संख्या है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की, जो एक दिन में काम करते हैं। इसमें 5,000 से 6,000 प्राइवेट सेंटर काम करते हैं और वहाँ हर तरीके के लोग जाते हैं। अनेक कंपनियां हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि अगर हमारे एम्प्लॉइज किसी भी प्राइवेट सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाते हैं और 250 रुपये का चार्ज, जो कि पूरे देश में एक समान निर्धारित किया गया है, उसको वहन करते हैं, तो कंपनी उसको रीइंबर्स करेगी। ये तो आप ही लोग रिपोर्ट करते हैं, मैंने तो आप ही के अखबार में इस प्रकार की खबरें पढ़ी। Sir, are there any apprehensions about the Mahakumbh becoming super spreader and any plans to end it sooner than scheduled? You see, one fact that I think Dr. Paul would answer it in greater detail, but one fact that we usually lose sight of is that the duration of Kumbh has already been curtailed. Kumbh, wherever it happens, is usually for 3.5 to 4 months. The present Kumbh has already been curtailed to a month. So let's not lose sight of facts. At times, when we tend to push a particular interpretation or narrative, we tend to lose sight of certain very basic facts. As far as super spreader events are concerned, the union government almost a month ago issued a SOP specifically for practices to be adopted in Kumbh, and had a longish meeting with the state government's officers, in which Dr. Balram Bhargav and Dr. Paul also participated. And after that, NCDC fielded 4 local inspection teams, 2 of which were led by Director NCDC himself, and they also shared with the state governments various protocols that need to be put in place. Additional facts can be shared by Dr. Paul. कि मर्यादा को रखते हुए ध्यान में जो एसओपी बनाया गया था और बनाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है, और ऐसे कांग्रेगेशन, ऐसा क्राउड जो है वो इस संक्रमण को ना बढ़ाए, इसके जो भी कदम उसमें सूचित किए गए सोच विचार के,
उनका अनुपालन हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से हो रहा है। अब तक जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है सर 45 से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर जिनको लगी, टोटल आंकड़े कितने हैं और कब तक हम इन तमाम लोगों का वैक्सीनेशन कर पाएंगे? एक आंकलन अगर आपका हो, अभी कितने लोग हैं इन दोनों कैटेगरी में और कब तक कर पाएंगे? कितने लोगों को लगी वो तो हमने आपको बताया, वॉलंटरी है ये भी स्पष्ट है। टोटल कितने हैं हेड काउंट किसी ने किया नहीं, ना आपने ना हमने। जो भी हमारे पास आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के हैं और हमें ये भी मालूम है कि हमारे देश का डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है, हर 10 बरस में किस अनुपात में आबादी बढ़ जाती है, उसके आधार पर प्रोजेक्शंस किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सरकार ने ये मंशा व्यक्त की कि इस उम्र से ऊपर के सभी लोग देश के किसी भी भूभाग में रहते हों उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। सरकारी सेंटर्स में आएंगे तो निःशुल्क उपलब्ध है, प्राइवेट सेंटर्स में आएंगे तो 250 रुपए की चार्ज है। ये महत्वपूर्ण बात है। क्या आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई? नहीं। क्या आपने यूनिवर्सल रूप से सबको सुविधा उपलब्ध कराई? जी हाँ। सर क्या री इन्फेक्शन के भी केसेस आ रहे हैं? क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या री इन्फेक्शन केसेस आ रहे हैं और नए वेरिएंट से हैं, इसका पता चल पाया? री इन्फेक्शन के डेटा को हम लोग ने स्टडी किया है और वो पब्लिश भी किया है। री इन्फेक्शन ग्लोबली 1% के करीब माना जाता है और री इन्फेक्शन उसकी डेफिनेशन को हम लोग ने नई डेफिनेशन दी है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट हो गई है, जिसमें पहला टेस्ट पॉजिटिव, फिर एक टेस्ट नेगेटिव और फिर दोबारा टेस्ट पॉजिटिव 100 दिन के अंतर 102 दिन के अंतर में होना चाहिए। ये डेफिनेशन है। सीडीसी ने पहले डेफिनेशन 86 दिन दी थी, बट अब डेफिनेशन 102 दिन की हम लोगों ने दी है और ये मानी गई है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी हो गई। Sir, Dr. Bhargava, question to you. What is the future planning looking at the rise that we are seeing, the steeper rise? Is there any projection when we are going to attain the peak? And the strains number, sir, how is the spread happening in 18 states, and if you can tell? ऐसी कोई प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स इसको ड्राइव करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनकी चर्चा यहाँ होती रहती है। हमें तो इस पीक को यहीं रोकना है और हमें ये करके दिखाना है। Thank you, friends. We close the press conference now.